کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا۔ تلواریں رک گئی تھیں، نیزے جھک گئے تھے، اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ شہادت کا عظیم مرتبہ پا چکے تھے۔ لیکن کیا کربلا کا درد یہیں ختم ہو گیا تھا؟ نہیں، اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ جلتے ہوئے خیمے، یتیم بچوں کی سسکیاں، بیوہ خواتین کے آنسو، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس ہستیاں جنہیں قیدی بنا کر بے رحم سپاہیوں کے درمیان سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر یزید کے دربار تک۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کی ہر منزل درد، مصیبت، بھوک، پیاس اور مظلومیت کی داستان سناتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اہل بیت اطہار کے اسی دردناک سفر کو بیان کریں گے، جب شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے صبر و استقامت کی تاریخ رقم کی، اور جب یزید کے دربار میں حق نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ کربلا کے قیدی، کربلا سے یزید کے دربار تک ایک دردناک داستان۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ عصر کا وقت ڈھل چکا تھا۔ شمر کی قیادت میں چند ظالم سپاہی آگے بڑھے۔ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ایک خیمے میں جمع کیا اور باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل غم و اندوہ سے بھر چکے تھے۔ دوسری جانب لشکر کے افراد مال غنیمت کی تلاش میں خیموں کی چھان بین کر رہے تھے۔ انہیں گمان تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے سے دنیاوی خزانے حاصل ہوں گے، مگر وہاں تو ذکر الہی، تقوی اور عبادت کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب ان کے ہاتھ کوئی قیمتی شے نہ آئی تو انہوں نے لباس اور معمولی سامان تک لوٹنا شروع کر دیا۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں سے بالیاں تک نوچ لی گئیں۔ معصوم بچی نے تکلیف کا اظہار کیا تو ایک سنگ دل شخص نے اس کے رخسار پر تمانچہ مار دیا۔ یہ ظلم کی ایسی داستان تھی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کتنے بے رحم تھے وہ ہاتھ جو نواسے علی علیہ السلام کی بیٹی پر اٹھے، اور کتنے بے حس تھے وہ دل جو خاندان نبوت کے بچوں پر ستم ڈھا رہے تھے۔ اب ان کی نگاہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف اٹھی۔ بیماری اور شدید کمزوری کے باعث آپ بے حال تھے۔ ایک ظالم سپاہی نے آپ کو بے دردی سے گھسیٹا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ نے گرد و پیش کا منظر دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ محافظ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بیمار کو بھی قتل کر دو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں۔ آپ نے جلال بھرے لہجے میں فرمایا، اگر اس بیمار کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہمیں قتل کرو، پھر اس پر ہاتھ اٹھانا۔ اسی دوران عمر بن سعد وہاں پہنچا اور اس نے سپاہیوں کو لوٹ مار بند کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام ایک خیمے میں جمع تھے۔ ہر طرف غم، آہوزاری اور بے بسی کا عالم تھا۔ شام ڈھلی تو انہوں نے اسی حالت میں نماز مغرب ادا کی۔ یہ شام غریباں تھی، درد میں ڈوبی ہوئی شام، شہداء کے خون سے معطر شام، اور مصائب سے بوجھل شام۔ ادھر یزیدی لشکر اپنے مقتولین کو دفنانے کے بعد فتح کے جشن میں مصروف تھا، جبکہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لٹی ہوئی شہزادیاں ایک بیمار امام کے گرد بیٹھیں اشک بہا رہی تھیں۔ پیاس اور بھوک کے کئی دن گزر چکے تھے۔ اب جسمانی تکلیف کا احساس بھی گویا مان پڑ گیا تھا۔ صبح عاشورہ آئی تھی تو ان مقدس خواتین کے ساتھ ان کے عزیز بھائی، بیٹے اور بھتیجے موجود تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی باقی نہ رہا تھا۔ کربلا کی سنسان رات اپنی وحشت لیے کھڑی تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ریت کا ذرہ ذرہ نوحہ کنا ہو، جیسے زمین خود فریاد کر رہی ہو۔ جن ہستیوں پر ان مظلوم خواتین کو ناز تھا، جن کے وجود سے انہیں حوصلہ ملتا تھا،
उनके सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो चुके थे। अगर चेहरा मुबारक सामने होता तो शायद दिल को कुछ करार आ जाता, मगर सर मुबारक नेज़े पर बुल। अगली सुबह यजीदी लश्कर ने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम को कैदी बना लिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को शदीद बुखार और नकाहत के बावजूद जंजीरों में जकड़ दिया गया। जब काफ़िला असीरान आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा के जसदों के करीब से गुजरा तो गिरिया हो जारी की ऐसी सदा बुलंद हुई कि फ़ज़ा सोगवार हो गई। हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना मुनव्वरा की सिमत रुख करके दर्द भरी आवाज़ में पुकारा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, अपने हुसैन को देखिए, उसका जिस्म जख्मों से चूर हो चुका है। या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों का नूर रेगे करबला पर बेकफन पड़ा है। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियां कैदी बना ली गई हैं और तेज हवाएं उनके सरों पर खाक उड़ा रही हैं। शिमर, उमर बिन सद और उनके साथियों ने चंद सिपाहियों को काफिला असीरा के साथ रवाना कर दिया। खौली बिन यजीद हज़रत इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम का सर्रे अक़्तस नेज़े पर बुलंद किए काफिले के आगे आगे चल रहा था। सफ़र के दौरान एक शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। जब उसने सूरह अल कहफ की ये आयत पढ़ी, अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना आजबा, तो रिवायात के मुताबिक सर्रे अक़्तस से आवाज़ आई, ऐ कुरान पढ़ने वाले, मेरा कत्ल किया जाना और फिर नेज़े पर बुलंद करके फिराया जाना अस्हाबे कहफ के वाक़े से भी ज़्यादा अजीब है। काफ़िला असीरान मंजिल ब मंजिल कूफा की जानिब बढ़ता रहा। इधर खौली बिन यजीद ने अपनी सवारी तेज़ कर ली ताकि सर मुबारक को जल्द अज जल्द उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश करके इनाम हासिल कर सके। जब वो कूफा पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उसने फ़ौरन दरबार जाने के बजाय अपने घर का रुख किया। सर मुबारक को नेज़े से उतारकर कपड़े में लपेट लिया गया। बाज़ रिवायात में मज़कूर है कि उसने सर अक़दस को तनूर के अंदर छुपा दिया। घर पहुंचने पर उसकी बीवी ने पूछा, क्या लेकर आए हो? खौली फ़ख्र से बोला, मैं ऐसा काम कराया हूं जिसके बदले बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेकर आया हूं। यह सुनकर उसकी बीवी पर गम और गुस्सा तारी हो गया। वो रोते हुए बोली, खुदा तुझे हलाक करे, तूने जन्नत के जवानों के सरदार का सर जुदा किया है। तूने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लाल पर हाथ उठाया है। तेरी ये सफ़ाकी तुझे कभी सुकून नहीं लेने देगी। खौली ये समझ रहा था कि मालो दौलत की खबर सुनकर उसकी बीवी खुश होगी, मगर उसके घर में इनाम की खुशी नहीं बल्कि नदामत और नफरत की आग भड़क उठी। तुम्हें क्या मालूम कि तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बेटी की हुर्मत को पामाल किया है? तुमने किस मुकद्दस खून को बहाया है? तुम्हारा ये जुर्म ऐसा है जिसकी तलाफी कभी मुमकिन नहीं। तुम्हारी ये जुर्रत तुम्हें दुनिया और आखिरत के अजाब में मुब्तला करेगी और आने वाला वक्त तुम्हारे लिए जिल्लत, रुसवाई और नदामत का पैगाम लेकर आएगा। याद रखो, जब अल्लाह ताला का फैसला नाफिज हो जाता है तो कोई ताकत उसके अहकाम में रुकावट नहीं बन सकती, और जब उसका इंतकाम हरकत में आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। कूफियों ने ये कलिमात सुने तो उनकी गर्दनें शर्म से झुक गईं और वो आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लगे। इसके बाद असीरान करबला को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखा तो गुस्से से बोला, इसे क्यों जिंदा छोड़ा गया है? इसे भी कत्ल कर दो। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये अल्फाज सुने तो जलाल में आ गईं और फरमाया, ऐ जालिम, क्या तू खानदान रसूल का आखिरी चिराग भी बुझाना चाहता है? क्या तू नस्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा देना चाहता है? अगर तेरा यही इरादा है तो पहले हमें कत्ल कर, फिर इस बीमार नौजवान तक पहुंचना। दरबार में मौजूद बाज लोगों ने मशवरा दिया कि इस नौजवान को कत्ल न किया जाए। इस पर इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये खातून कौन है? जवाब दिया गया, ये हज़रत ज़ैनब बिनते फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन है।
इब्ने ज़ियाद ने तकब्बुर से कुछ नाजीबा अल्फाज कहे, मगर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अगरचे बीमार हूं, लेकिन अली अलैहिस्सलाम का नवासा और हुसैन अलैहिस्सलाम का फर्जंद हूं। तू मुझे जल्लादों के जरिए खौफजदा नहीं कर सकता। फिर इब्ने ज़ियाद ने हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ देखकर कहा, तुम कैदी हो और तुम्हारी हालत मोहताजों जैसी है। आपने निहायत वक़ार से जवाब दिया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इज़्ज़त अता फरमाई और हमें पाकीज़गी बख्शी। रुसवाई फासिकों और बदकारों का मुक़द्दर होती है, हमारा नहीं। फिर आपने आयत तत्हीर की तरफ इशारा फरमाया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया? हज़रत ज़ैनब सल्लामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, इन बातों का फैसला अल्लाह की बारगाह में होगा। मेरे भाई ने शहादत का मकाम पाया और तुमने जुल्म का बोझ अपने सरों पर ले लिया। ये जवाब सुनकर इब्ने ज़ियाद गुस्से से भर गया, मगर दरबार के बाज़ लोगों ने उसे खामोश कर दिया। कुछ देर बाद उसने फिर गुस्ताखी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़ीबा अल्फाज कहे। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब सल्लमुल्लाह अलैहा की आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने फरमाया, हाँ, तूने हमारे सरदार को शहीद किया, हमारे खानदान को जख्मी किया और हमारे दिलों को गम से भर दिया। लेकिन याद रख, इसका हिसाब एक दिन जरूर होगा। बाद अज़ा इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि असीरान को दमिश्क रवाना किया जाए। चुनाचे नेज़े पर सर्रे मुबारक बुलंद था और उसके पीछे काफिला असीरान रवाना था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खामोशी से अश्क बहा रहे थे और हर दिल गम से बोझल था। सफ़र के दौरान जहां भी पड़ाव होता, लश्कर के लोग सर्रे मुबारक को नुमायां करते। एक मकाम पर एक ईसाई राहिब ने पूछा, ये किसका सर है? जवाब मिला, हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम का। राहिब ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, तुम लोग अपने नबी के नवासे के साथ ये सलूक करते हो? उसने एक रात के लिए सर्रे मुबारक अपने पास रखने की ख्वाहिश जाहिर की। रिवायात में आता है कि उसने रात भर निहायत अदब व एहतराम के साथ सर्रे अक़दस के करीब वक्त गुजारा और उसके दिल पर इस वाक़े का गहरा असर हुआ। बाद में काफ़िला मुख्तलिफ मनाजिल से गुजरता हुआ शाम की जानिब बढ़ता रहा, यहां तक कि असीरान करबला दमिश्क पहुंच गए और सर्रे अक़दस को यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद अपने तख्ते हुकूमत पर बैठा था कि ज़हर बिन कैस आगे बढ़ा। यजीद ने दरियाफ्त किया, क्या खबर लाए हो? उसने जवाब दिया, हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम अपने चंद अफराद ख़ानदान और रुफ़क़ा के साथ आए थे। उन्हें हाकिम वक्त की बैत पर आमादा करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जंग हुई और वो अपने साथियों समेत कत्ल कर दिए गए। इतना कहकर उसने सर्रे अक़दस को खोलकर यजीद के सामने रख दिया और बताया कि ख़ानदान हुसैन की ख़वातीन और बच्चे भी कैद करके लाए गए हैं। सर्रे मुबारक को देखकर यजीद के चेहरे पर अजीब तासुरात नमूदार हुए। फिर उसने हुक्म दिया कि कैदियों को दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार में मौजूद एक यहूदी आलिम ने जब सुना कि यह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है, तो वो हैरत से बोला, ये कैसा तर्ज अमल है? मैं अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसब से दूर की निस्बत रखता हूं, लेकिन मेरी कौम आज भी मेरा एहतराम करती है, जबकि तुमने अपने नबी के नवासे के साथ ये सलूक किया है। इसी दौरान एक ईसाई भी गुफ्तगू में शामिल हुआ और बोला, हम अपने मजहबी आसार की ताज़ीन करते हैं, मगर तुमने अपने नबी के ख़ानदान के साथ जो मामला किया है वो हैरान कुन है। दरबार में चह में गोइयां बढ़ने लगीं तो यजीद ने वक्ती खामोशी इख्तियार कर ली। फिर उसके सामने असीरान अहले बैत लाए गए। उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपने फरमाया, अली बिन हुसैन। यजीद ने अपनी राय का इजहार करते हुए चंद बातें कहीं, मगर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जवाब में कुरान करीम की आयात सब्र व तक़दीर की तिलावत फरमाई। कुरानी कलाम की गूंज दरबार में फैल गई और कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसी दौरान हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा की निगाह सर्रे मुबारक पर पड़ी तो गम की एक नई लहर दौड़ गई। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रिक्कत भरे लहजे में अपने भाई को याद किया
और उनकी अजमत व फजीलत का जिक्र फरमाया। यजीद ने पूछा, ये खातून कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी फुप्पी ज़ैनब बिनते अली हैं। फिर दरबार में मुख्तताइज़ बातें हुईं और ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शराफत और मकाम का जिक्र आया। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने निहायत वक़ार और दिलेरी के साथ गुफ्तगू की और वाज़ेह किया कि इज़्ज़त व शराफत का मेयार दुनियावी ताकत नहीं, बल्कि हक़, सदाकत और अल्लाह ताला की रिज़ा है। दरबार के माहौल में कशीदगी बढ़ती रही, मगर अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने हर मौके पर सब्र, हिकमत और हौसला मुज़ाहिरा किया। उनकी गुफ्तगू और तर्ज अमल ने हाज़रीन पर गहरा असर छोड़ा और करबला के पैगाम को मज़ीद नुमायां कर दिया। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने निहायत जलाल और वक़ार के साथ फरमाया, तेरे सीने में पुरानी दुश्मनी और अदावत की आग भड़क रही है, जिसे तूने मेरे बेगुनाह भाई के खून से ठंडा करने की कोशिश की है। तूने आले अब्दुल मुत्तलिब के चरागों को बुझाने का गुमान किया है और अपने दिल की कीना परवरी को तस्कीन दी है। लेकिन याद रख, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जब तू अपने अमाल का हिसाब देने के लिए अपने अंजाम से दोचार होगा। आज तू जुल्म पर फख्र कर रहा है, मगर कल यही जुल्म तेरे लिए वबाल बन जाएगा। मेरे भाई का खून तेरे ऐवानों और तख्ते हुकूमत के लिए सुकून नहीं, बल्कि बेचैनी का पैगाम बनेगा, और एक दिन तू अपने किए का नतीजा जरूर देखेगा। बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा के ये पुरअसर कलिमात सुनकर दरबार पर खामोशी तारी हो गई। हाज़रीन हैरत और ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी दौरान एक शामी शख्स खड़ा हुआ और उसने हज़रत सकीना बिनते हुसैन सलामुल्लाह अलैहा की तरफ इशारा करते हुए नाज़ीबा ख्वाहिश का इजहार किया। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा फ़ौरन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करीब आ गईं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने निहायत सख्त लहजे में उस शख्स की बात को मुस्तरद करते हुए फरमाया, तुझे इस बात का कोई हक हासिल नहीं। फिर दरबार में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बड़े दिलेरी भरे अंदाज में ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बयान किया। आपने फरमाया, हमें इज़्ज़त हमारे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है और हमारा मकाम दुनियावी ताकत या हुकूमत का मोहताज नहीं। दरबार में मौजूद लोग इन अल्फाज को गौर से सुन रहे थे। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बेबाक गुफ्तगू ने माहौल को बदल कर रख दिया। यजीद ने महसूस किया कि हाज़रीन के दिलों पर अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की बातों का गहरा असर हो रहा है। चुनाचे उसने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर बाद मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दरबार में मौजूद लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ये नाम जिसकी गवाही अभी दी जा रही है, उससे हमारा रिश्ता सब जानते हैं। ये अल्फाज सुनकर मजलिस में एक नई कैफियत पैदा हो गई।